Hello everyone, welcome to AKMIS Academy. So we were in the video discussion of Down to Earth. So where we have discussed multiple parts from it. So in that particular article, again I say there is one neglected article which we have to focus upon it. My guess is like this time in UPSC, we are going to get a question regarding with this particular agromet units, because like India to wind up its agromet units. So we'll see what are these particular agromet units and what this agromet units would be providing, who would be taking the advantage, and under which what are the other considerations which we have. That is what we would be discussing in this particular video. So center has decided to wind up 199 district agromet units that provides generally a crucial information at the district and block level agrometeorological advisory services, whereby these are the services which would be provided to the farmers regarding with the weather variation which is happening over there, regarding with the message of how to protect that particular crop and what to do. So this particular message is sent through Krishi Vignan Kendras as such. Clear? So it would be helping thousands of farmers across the country as such. So if you could see these agromet units, जो agrometeorological advisory services के अंदर agromet units बोल के हैं, clear, it was established by Indian Meteorological Department. ये याद रख लो, prelims में अगर क्वेश्चन पूछेंगे consider the following statements, तो उसमें agromets के बारे में पूछेंगे, तो उसमें जरूर पूछेंगे like who have established it. So combinedly it is by IMD and Indian Institute of Agricultural Research, which falls under Ministry of Earth Sciences, which would be supporting the Indian Meteorological Department, and Agricultural Ministry, they together. It means IMD and Indian Institute of Agricultural Research, these both have made this particular agromet units to be started. So if you could see, these units offer crucial advisories to farmers at district and block levels every Tuesday and Friday. है ना, ये उतना ज़्यादा याद मत रखो, Tuesday and Friday, just as an information मैं दे रहा हूँ. सो हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे के दिन ये एडवाइस देगा फार्मर्स को लाइक क्या करना है. अगले 5 दिन का जो वेदर रिपोर्ट है, वेदर चेंजिंग पैटर्न है, दैट वुड बी फोकस्ड अलोंग दिस पर्टिकुलर नोट. तो उसमें अगर आप देखेंगे इट एडवाइजरीज, दीज एडवाइजरीज जो भी है, इसमें क्या इंटीग्रेट होगा जो एडवाइस देंगे. इसमें आईएमडी का वेदर फोरकास्ट होगा वेयर यू कैन रिलाई अपॉन, एंड लोकल वेदर वेरिएशंस. मतलब आईएमडी बोलेगा कि लाइक इस दिन यहां पे इस जगह पे बारिश होगा, बट लोकल वेदर वेरिएशंस का हिसाब से भी कैलकुलेट करके ये एडवाइजरी दिया जाएगा अंडर एग्रोमेट यूनिट्स. सो अर्लियर जो गवर्नमेंट ने, आई थिंक सो इट वाज इन 2023 मंथ ऑफ जनवरी, गवर्नमेंट ने बोला कि लाइक दे विल इंक्रीज द नंबर ऑफ दिस 199 डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स टू 530 एग्रोमेट यूनिट्स. But पता नहीं what has happened, suddenly they are winding it from the, they have already winded it in the month of March. So इसमें अगर आप देखेंगे what issues हो सकता है, like why government might have did, इसमें एक issue है administrative issue and financial issue as such. तो उसका जो funding process है उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है, and उसमें जो administrative issues है, because this is at very grassroots level, so tackling the administrative issues there and checking the work efficiency of those particular persons available there, ये बहुत difficult हो जाएगा. तो ये issues की वजह से government has thought this particular aspect to be shut it down. So these district agromet units are the units established at कृषि विज्ञान केंद्र, जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्रास हैं, तो वहां पे हमें मिलेंगे. So ये किसके अंडर सेट किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, तो एक स्कीम है गवर्नमेंट में, उसका नाम है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम. सो फार्मर के लिए वो मौसम, वो पर्टिकुलर सीजन का जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम दिया जाता है. तो अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम दे माइट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम विच हैज एस्टैब्लिश्ड दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स एज सच. तो यही टाइप में ऑलरेडी वी हैव इट, उसको हम लाइक AMFUs बोलते हैं, एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स. क्लियर? सो विच इश्यूज सिमिलर एडवाइजरीज बट कवर्स टोटल 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स एंड डज नॉट प्रोवाइड एट ब्लॉक लेवल. हर एक ब्लॉक लेवल पे फोकस नहीं करेगा, बट 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स को एक एरिया मान के उसका इंफॉर्मेशन देगा, विच इज नॉट एट दैट ग्रास रूट लेवल, है ना.
सो दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी एग्रोमेट्स को देखेंगे, दे प्रोवाइड वैल्यू एडेड वेदर फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट टू 5 days। तो वेदर फोरकास्ट तो बोलेगा ही बोलेगा, बट ऑल्सो विथ क्रॉप स्पेसिफिक वेदर एडवाइजरी मैसेजेस भी देगा। लाइक ये क्रॉप है तो ऐसा प्रोडक्शन करो, ये क्रॉप है तो ऐसा प्रोडक्शन करो, ये एडवाइस तो मिल ही जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी एग्रोमेट यूनिट्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट, बट गवर्नमेंट हैज टुक दिस डिसीजन। हो सकता है they might relaunch again after the election, but as administrative and financial issues के बिना there is nothing as such we can see in that agromet unit। so कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि इसमें कैसे भी आए, बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट का इंफॉर्मेशन जो भी है वहां पे मिलेगा। सो दिस कृषि विज्ञान केंद्र जो भी है, दीज आर नथिंग बट फार्म साइंस सेंटर्स। मतलब एग्रीकल्चर के बारे में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, दैट कैन बी एग्जैक्टली सीन अलोंग दिस पर्टिकुलर कृषि विज्ञान केंद्रस। सो इट इज एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर इन इंडिया। जनरली ये कृषि विज्ञान केंद्र इनिशियली एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स के आसपास में एस्टैब्लिश किया गया था। लेटर ऑन दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग डेवलपमेंट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्रस एवरी ब्लॉक लेवल एंड विलेज लेवल। Generally, they would be attached with the local agricultural university to get up on the information, and these Krishi Vignan Kendras will also produce certain important inputs which were necessary for the agriculture pattern to be linked. So these Krishi Vignan Kendras generally acting as a link between Indian Council of Agricultural Research, may not be directly, but ICAR with local agricultural university and this local agricultural university to Krishi Vignan Kendra and Krishi Vignan Kendra से farmer. But this particular Krishi Vignan Kendras जो भी हैं, this did not prove the best output what actual ambition was. So ये उतना खास में काम नहीं कर रहे हैं, as everyone know. And इसका aim अगर देखें, apply agricultural research in practical and localized setting. तो ये agricultural research है, technology है, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करे, इस्तेमाल करे एंड लोकलाइज सेटिंग में उसका यूज करे। दिस इज व्हाट द मेजर एम्बिशन ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। तो एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र प्रोवाइड सेवरल फार्म सपोर्ट एक्टिविटीज लाइक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, डिसिमेशन, टेक्नोलॉजी को डिसिमेट करना फार्मर्स तक, फार्मर्स को ट्रेनिंग करना, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये मेजर काम है कृषि विज्ञान केंद्र का। लाइक दे जनरली अंडरटेक फार्म एडवाइजरी सर्विसेज, फार्मर को बताएंगे लाइक सॉइल में कैसे प्लविंग करना है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है, कौन सा सीड यूज करना है, ये सारे एडवाइजेस ये कृषि विज्ञान केंद्र देगी। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करेगी रिगार्डिंग विद द वेदर फोरकास्ट, रिगार्डिंग विद द फ्लड्स, ड्रॉट्स, रिगार्डिंग विद द IMD रिपोर्ट्स, उसको एक्सप्लेन करेगी कि लाइक दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड अलॉन्ग विद दैट फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने से क्या होता है, प्रैक्टिकलिटी विजुअलाइजेशंस में फार्मर कैन अंडरस्टैंड बेटर, बिकॉज फार्मर्स आर नॉट दैट ग्रेटली एजुकेटेड, राइट। सो डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाने का काम है कृषि विज्ञान केंद्र में। सो जो भी साइंटिस्ट बैठेगा वहां पे, ही टेंड्स टू फोकस अपॉन दैट पर्टिकुलर रीजन। एंड ऑन फार्म टेस्टिंग जो भी है, ये फार्म टेस्टिंग, दिस विल ऑल्सो बी डन बाय दिस पर्टिकुलर कृषि विज्ञान केंद्र, लाइक व्हाट इज द प्रोडक्टिव आउटपुट विच इज हैपनिंग ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ, ये कितना ग्रो हो रहा है, कितना तक ग्रो हो सकता है, ये एस्टिमेशन करने का काम करेगा। सो कृषि विज्ञान केंद्र ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम है। सो प्लान करेक्ट था, बट इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली सेंटर माइट हैव डिड इट अलोंग विद द स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेशन, बट इसमें और थोड़ा लूप होल्स है विच हैज टू बी कैलकुलेटेड एंड मूव्ड फर्दर। इफ यू कुड सी द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र ऐसा 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था पौंडीचेरी में, है ना। सो ये थोड़ा फैक्ट याद रख लो, इससे अलावा ज़्यादा इसमें खोजने की ज़रूरत नहीं है, बट कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर एक बार और थोड़ा पढ़ लो। चांसेस आर ग्रेट क्वेश्चन ऑन कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रोमेट यूनिट्स might be coming within this particular UPSC prelims examination. Hence, thank you for watching this particular video. Hope you have liked this video. We would be coming up with more and more such kind of videos so that your knowledge would be enhanced and education revolution comes. If you have liked it, please do like it and share the video as much as you can. Click on the bell icon so that you would be getting continuous notifications, and do subscribe to Ekam IAS Academy channel. Thank you for watching this video. Have an awesome day. Jai Hind.